Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 FY24 results conference call of Praveg Limited, hosted by Kirin Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Preeti Bharadwaj from Kirin Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, I welcome you all to the conference call of Praveg Limited. From the management team, we have Mr. Vishnu Patel, Chairman, and Mrs. Bijal Parikh, Finance Director. Now I hand over the call to Mr. Vishnu Patel, Chairman. Over to you, sir. Sir, your line is in the talk mode. Please proceed. Hello? Hello? Yes, sir, we are able to hear you. Please proceed. Yeah, good afternoon. Welcome to all investors and analysts on this con call. I welcome to all fellow investors also. May I start with the question answer, or what is the... Should I open up for questions? Or Bijal Parikh is briefing us? Yeah, sir. Bijal is joining? Yeah, sir. We just had a call. She's joining. She's joining? She's joining. Okay, so I have to wait for some time. So, till that time, can you proceed with? Question answer. Okay. I am ready. Okay, sir. Okay, so you may proceed. Ladies and gentlemen, please note that the Praveg conference call is in conference. We request you to stay connected. I think some audio problem may be there. Sir, we are able to hear you. No, question answer. I am starting. Please raise the question then. Sure, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question may please press star and 1 on your touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is on the line of Ranudeep Sen from MAS Capital. Please go ahead. Sure. Thank you for the opportunity. Sir, this question is with respect to the Brahmakund project of ours. We have 30 cottages there operational from November of 2023. That equates to almost 5 months till March 2023.
given everything in Ayodhya was sold out in Jan to March quarter, just 400 guests served during that period doesn't seem right. Am I missing anything there, sir? Which resource? Sir, Brahmakund. ब्रह्मकुंड, बताइए क्या क्या आपका कहना है? सर तो मेरा क्वेश्चन था, आई थिंक नवंबर 2023 से वो रिजॉर्ट ओपन हुआ है हमारा. हाँ जी. और अभी ऑलमोस्ट 5 महीना हो गया सर. एंड जैन टू मार्च का पीरियड जब वो राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तभी सर एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट. तो बट आई थिंक इन्वेस्टर डेक में आपने मेंशन किया है कि हमने सिर्फ 400 गेस्ट को सर्व किया है थ्रू दैट रिजॉर्ट. तो वो नंबर्स थोड़े मैच नहीं हो रहे सर, बिकॉज अगर इवन मैं जैन टू मार्च का भी पीरियड पकड़ूँ 90 डेज एंड 30 कॉटेजेस. ओके. हाँ, मतलब जस्ट 400 नंबर सीम्स वेरी लो. तो वो कोरिलेट नहीं हो रहा बिकॉज एवरीथिंग वाज सपोज टू बी सोल्ड आउट इन अयोध्या सर तभी. तो वो डाउट है. बिजल क्या आप जरा देख लीजिए ये पॉइंट में कहाँ लिखे 400 गेस्ट हो. सर जो इन्वेस्टर डेक अपलोड हुआ था उसमें मैं चेक कर रहा हूँ सर. ठीक है, ठीक है. ओके, ओके. Should we move on to the next question? Yeah, next question. Bijalban, please brief this point. 400 guest मतलब है 400 total booking और rooms. क्या क्लैरिफिकेशन जरा क्या उसका मतलब है, जरा डिटेल करिए. Just joined, so can you repeat the questions again? Ma'am, I'll repeat the question. Brahmakund Resort, as per the deck, was operational since November 2023. Right. And even if I take the numbers till March 2024, which is 5 months, and Brahmakund has 30 cottages, right? So 5 months and 30 cottages. I mean, the numbers that you mentioned there is that only 400 guests served. That seems little very low, in fact, given we know that between Jan to March 2024, which was the period when Ram Mandir establishment was active, everything was sold out in Ayodhya. So that number of 400 seems very low. So just wanted, am I missing anything there? Just wanted a clarification on that. Is a group or is a guest? Yeah, it's a number of guests basically, because I just want to clarify three things that even though we have started in the month of November and January, basically because of the inauguration of the Ram temple, the visitors were not allowed to come over there. So till 31st January, no outsider guests were allowed to move into the Ayodhya. So that is the reason where January was not be occupied. So this occupancy is for the month of February and March. Yes. Sure. Thank you, ma'am, for the clarification. Ma'am, my next question is with respect to the Velavadar resort. I think the update mentions that Velavadar has 12 cottages. So just wanted to understand the thought process of the management here. I mean, like ideally, should we not be looking at properties which should at least have around 30 cottages, which helps us in operational efficiency? Because 12 cottages, the number seems very low, unless the ARPU is very high, where the standard ARPU is at around 10,000, unless the ARPU at Velavadar is 20,000, which justifies just having 12 cottages. So just wanted to understand how are we thinking about Velavadar? And just the second part of the question, in future, do we wish to have projects where we will have very limited rooms, but we understand these are very exclusive setups, so this will be the way forward. Thank you. Okay. I would like to give detail about Velavadar. Velavadar is exclusive wildlife sanctuary, part of Buck Sanctuary. वेलावदर वो बल्क सेल के लिए या बल्क प्लान के लिए नहीं किया गया है. वहाँ इंडिया से जो स्पेसिफिक वाइल्ड लवर है वो ही आते हैं, और उसकी क्वांटिटी की जगह हमने क्वालिटी
पे ध्यान फोकस किया है। हमारे पास वहाँ लैंड हमने वी हैव एक्वायर्ड मोर लैंड, वी कैन बिल्ड मोर रूम्स ओवर देयर ऑल्सो, बट since we are starting at Velavadar, and there is some geographical and seasonal effect also, so we keep it as a boutique resort. We can serve guests as per their requirements. So उसके हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है, और उसका जो ARR है वो पर्टिकुलर सीजन में 20,000 से ऊपर उसका ARR रूम का आने वाला है वहाँ, और वो स्पेसिफिक जो रिसोर्ट्स है वो ARR पे डिपेंड है। एलाइड एक्टिविटी यानी कि वेडिंग, कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स के बाद हम 12 की जगह दूसरा 12 ऐड कर सकते हैं। स्लोली वी वांट टू मूव अहेड फॉर दैट, उसका जो एक्सपांशन है। थैंक यू सर क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर आप मसाई मारा सरंगेटी में जाते हैं तो आपको वहाँ 6 रूम से 12 रूम के रिसोर्ट्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 12-15 रूम मैक्सिमम होती है वाइल्ड लाइफ में। तो उसके हिसाब से अट्रैक्ट करने के लिए, और वाइल्ड लाइफ लवर को मास नहीं चाहिए, उनको बहुत स्पेसिफिक सर्विस देनी पड़ती है, तो उसके लिए वो डिजाइन किया गया वेलावदर। चलो थैंक यू सर क्लैरिफिकेशन के लिए। आई थिंक अभी क्लियर है, एंड आई थिंक आपने जैसे मेंशन किया अगर ARR 20,000 के ऊपर है तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था सर, हमारा जो ये ग्रैंड योलॉजिया का एक्विजिशन था अहमदाबाद में, I mean, as per the investor deck, sir, it is the only 5-star property in that area, which is very great. Little concerned about sir, ये जो ARR है उसका खाली 6,500 दिखा रहा है, तो any specific reason sir इतना कम क्यों है उसका ARR? सही बात है, सही, you are right there, सर। अगर आप अहमदाबाद के कोई गेस्ट या आपका कनेक्शन है और जो लोग ने वहाँ विजिट किया है उसको अगर आप उससे आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रैंड योलॉजिया इज फॉर द सोशल एंड वेडिंग फंक्शंस काइंड ऑफ होटल। उसके एग्जैक्ट एडजॉइनिंग होटल्स है ताज ग्रुप की जो 300 रूम की है, और उसके एग्जैक्ट एडजॉइनिंग हमारी है जो ग्रैंड योलॉजिया है जो 76 रूम की है। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो फोकस है अदर देन रूम सर्विसेज। रूम सर्विसेज वी टोटल कंट्रीब्यूशन में से 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रूम सर्विस का नहीं आने वाला है। इट्स अ वेडिंग, लेकिन जितनी रूम है इससे भी ज्यादा सोशल फंक्शन की जगह है। वेडिंग के लिए एक्सक्लूसिव एक बैंक्वेट्स बना हुआ है 15,000 फीट कारपेट का, रिसेप्शन के लिए 15,000 फीट कारपेट का दूसरा बैंक्वेट्स बना हुआ है। तीसरा म्यूजिक और वेडिंग की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए तीसरा, और बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए तीसरा एक बैंक्वेट बनाया गया है जो 15,000 स्क्वायर फीट का है। टोटल 2,000 लोगों को हम सब एक साथ कर सकते हैं वहाँ। अगर आप टेरेस देखेंगे तो इंफिनिटी पूल के साथ एयर कंडीशनिंग, ओपन एयर कंडीशनिंग एंड हीटर रेस्टोरेंट है जो स्पेसिफिकली पार्टी के लिए बनाया गया है, यानी कि एनिवर्सरी पार्टी, बर्थडे पार्टी, उसके लिए बनाया गया है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो हमारा हैंग आउट करके है जो सिंधु भवन का रात का जो माहौल है नाइट लाइफ वाला, तो वो वहाँ कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए रात को बहुत लोग आते हैं, तो उसके लिए हमने हैंग आउट बनाया है। तो कुल मिला के अगर 19 फ्लोर में जाएंगे तो आपको दूसरा एक बैंक्वेट मिलेगा अराउंड 7,000 स्क्वायर फीट का जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया है। अगर आप सेकंड फ्लोर जाएंगे तो वहाँ भी आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एक स्पेशल वेन्यू खड़ा किया गया है, और जो रूम्स है वो ओनली 3 फ्लोर पे है। हालांकि अलाइड एक्टिविटी हमारी 5 फ्लोर पे है, 5-6 फ्लोर पे है टोटल। तो जो रेवेन्यू कंपोजिशन है वो रूम पर डिपेंड नहीं है। रूम हमारा वेडिंग बुक होता है तो ऑटोमेटिक रूम होती है, और 7,500 जो हमारा रेट्स है वहाँ 6,500 से 7,500 तक चार्ज करते हैं। देयर इज ऑल्सो सम टेक्निकल इश्यूज ऑल्सो विच इन्वेस्टर नीड टू अंडरस्टैंड। जो अगर मैं रूम का जैसे ही रेट 7,500 अबव जाता हूँ तो जो GST कंप्लायंस रेट है वो 18% हो जाता है। अगर मैं रूम का 8,000 लेना चाहूँगा, मेरे को 8,000, 10,000, 9,000 मिल सकता है सीजन में, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, बट जैसे ही मैं 8,000 करूँगा मेरा GST जो टैक्स है वो 18% हो जाएगा। किसके ऊपर? वेडिंग सर्विस
बैंक्वेट सर्विस सारी 18% से सेल करनी पड़ेगी। हालांकि अगर मैं 7,500 से बिलो रहता हूँ तो मेरे को 5% जीएसटी लगता है। तो देयर इज अ टेक्निकल कॉम्बिनेशन कि उसमें वेडिंग्स का सोशल बिजनेस ज़्यादा मिलता है, तो उसका जीएसटी का जो बर्डन है वो एंड कस्टमर पे, क्रेडिट लेने वाले कस्टमर नहीं होते, सोशल पर्सनल सर्विस लेने वाले होते हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं है 18% जीएसटी पे करने का। तो 5% पे करने के लिए लोग हैप्पी होते हैं, तो उसको उसके हिसाब से सारा टोटली प्लान डिजाइन किया गया है ग्रैंड इलोगिया का। और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पूरी नेक्स्ट सीजन, वेडिंग सीजन इलोगिया, ग्रैंड इलोगिया की बुक है, ऑलमोस्ट 70-80% बुक है। और यू विल गेट अ गुड इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। जो बिजनेस है इलोगिया का वो काफी अच्छा बेंचमार्क साबित होगा प्रवेग के लिए। श्योर सर, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। सर हमारा रेवेन्यू तो ये इन FY24 बढ़ा है, बट देयर इज बिन अ मार्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर उसका आप थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, एंड गाइडेंस फॉर FY25 क्या रहेगा सर? थैंक यू सर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सब इन्वेस्टर को, पहले भी मेरे कॉन कॉल में अगर जिसने सुना है उसको बताया है कि प्रवेग इज फोकसिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर द रिसोर्स यूटिलाइज, रूम यूटिलाइज, सर्विस यूटिलाइज। हमारा टोटल जो फोकस है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पूरा 6-9 महीने में हम काफी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप अच्छा स्टडी किया है। अगर आप ट्रिप एडवाइजर से लेके सारे हमारे रिव्यू देखेंगे तो आपको बियॉन्ड 4 स्टार मिलेंगे, 4.5, 4.2, 4.1। ऑलमोस्ट ऑल रिसोर्ट इज बियॉन्ड दिस रेटिंग जो हमारे रिसेंटली ओपन हुए हैं। उसके लिए हमें को अच्छा मैन पावर रखना पड़ता है, उसके लिए अच्छा फूड सर्विस देना पड़ता है, उसके लिए अच्छी रूम सर्विस देनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से पूरा सेटअप है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारा सेटअप है ये पूरा इन हाउस हुआ है। अब तक प्रवेग आउटसोर्स पे डिपेंड था, फूड एंड बेवरेजेस पे, रूम सर्विस में। अभी हमारे जो मैन पावर है वो अबव 1000 हो गए, जो पहले मार्च 23 में जो लोग टोटल 150 लोग थे, आज 1100 से अबव मैन पावर इज वर्किंग इन द प्रवेग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सारी सिस्टम है, हायर की सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट की गई है। क्लस्टर हेड से लेके, जीएम से लेके, जोनल हेड से लेके, ऑपरेशन डायरेक्टर से लेके सारा सेटअप किया गया है। और तीसरी जो आपने जो रेवेन्यू वाली बात बताई, तो जो सबसे बड़ी जो इफेक्ट है वो आपको ये समझनी है कि जो नया रिसोर्स होता है हमने कब इनॉग्रेट किया, तो मोस्ट ऑफ रिसोर्ट इज इनॉग्रेटेड इन 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर। आप जानते हैं कोई भी रिसोर्ट या कोई भी होटल जब बनती है तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी होती है, विजिटर्स आते हैं जाते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो धीरे धीरे उसको मोबिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट रेवेन्यू में होता है। हमारे ट्रैवल एजेंट भी विजिट करते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग गेस्ट है वो भी विजिट करते हैं, धीरे धीरे वो माउथ पब्लिसिटी से बढ़ता है। तो जो ऑक्यूपेंसी लेवल है धीरे धीरे बढ़ता भी है। और आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, ऑलमोस्ट ऑल एक आध रिसोर्ट्स को छोड़ के जो सीजनल इफेक्ट में कई बार इनॉग्रेशन अगर मैं अप्रैल में करूंगा, और अभी बहुत हीट सीजन है, वेदर हॉट सीजन है, तो उसकी वजह से थोड़ा हीट करता है। बट जैसे ही सीजन आएगी वो ऑपरेशनल मतलब अच्छा रेवेन्यू मेरे को स्टार्ट करेगा। तो इफेक्ट ओवरऑल ये है कि नए रिसोर्ट जब लॉन्च होते हैं तो उसको आपको 6 महीने से 12 महीना देना पड़ेगा, जिसमें मेरे को ऑक्यूपेंसी का लेवल भी बढ़ता है, माउथ पब्लिसिटी का लेवल बढ़ता है। तो ये सारी इफेक्ट अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे आती है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये 33 करोड़ के रेवेन्यू में 9.1 इज EBITDA मार्जिन, 9.1 इज EBITDA मार्जिन। इट इज अ 28% फॉर न्यूली इनॉग्रेटेड रिसोर्ट। अगर आपको 28% EBITDA मार्जिन मिलता है तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे वो आगे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आपको देखने भी मिलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर ऑल द आंसर। थैंक यू। Thank you. और Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in this conference, we request you to limit your questions to 2 per participant only.
The next question is on the line of Karan Kamdar from DR Chalky Finserv Private Limited. Please go ahead. हेलो सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि अपना जो इन्वेंट्री कॉस्ट है जो बुक्स में आता है बैलेंस शीट में, हमारे लिए क्या इन्वेंट्री होता है? 12 करोड़ की लगभग इन्वेंट्री दिख रही है बुक्स पे। Yes, Karan ji, as you know, the Praveg is not only in hospitality. We have event management services also. We have event management inventory there also. Here also. ओके सर, सो मतलब व्हाट इज इट लाइक टेंट्स स्टैंडीज क्या होते हैं इन्वेंट्री में हमारे लिए? नहीं, बहुत कुछ होता है। It's a 3 acres warehouse. It is fully with the structures, wooden carpet, clothes, statues, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। तो वो जो इन्वेंटरी है इवेंट मैनेजमेंट की, वो प्रवेग के पास खुद की इन्वेंटरी है, तो वो बुक्स पे वही इन्वेंटरी आपको शो करे। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारे डेटास भी जो दिख रहे हैं, सो ये डेटास रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, इवेंट बिजनेस है, क्या नेचर रहेगा हमारे डेटास का? बिकॉज द अमाउंट मूव नहीं हुआ है ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट उधर का उधर ही है। सर मैं आपको बताऊं, डेटर्स मोस्टली हॉस्पिटैलिटी के होते हैं। इट्स 2 कॉम्बिनेशन। 1 गवर्नमेंट डेटा, जैसे कि कॉन्फ्रेंस होती है मार्च महीने में, फरवरी महीने में। आप जानते हैं गवर्नमेंट से पेमेंट आने में 90 डेज लगते हैं मेरे को, कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट आता है तो वो वाले भी पेमेंट है। कई हमारे जो मार्च महीने में अच्छी खासी इवेंट जो हुई है, कॉन्फ्रेंस से हुई है, उसके भी पेमेंट होते हैं। तो एक नॉर्मली वही रहता है। ओके, अंडरस्टूड सर। तो ये भी इवेंट मैनेजमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है ना अपने डेटा? नहीं, मैं वही बताया कि कॉन्फ्रेंस केवड़िया में हुई फरवरी महीने में, जनवरी महीने में, जिसका पेमेंट अप्रैल में आया होगा, मई में आया होगा, वो रहता है गवर्नमेंट से। ओके, गॉट इट सर। सर जो हमारी बढ़िया होटल खुली है ग्रैंड ड्यूलोजिया अहमदाबाद में, मुझे जानना था कि सर क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है ये होटल का? कितना रेवेन्यू आ सकता है ये प्रॉपर्टी से? ये प्रॉपर्टी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिस प्रॉपर्टी विल गिव अस मोर देन 40% EBITDA ड्यू टू देयर हायर ऑक्यूपेंसी एंड बुकिंग बिजनेस फ्रॉम द वेडिंग साइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा इंटरनली असेसमेंट हमारी जो टीम का है वो 35 के अबव इस साल जाएगा रेवेन्यू ओनली फ्रॉम सिंगल प्रॉपर्टी। 35 करोड़, राइट सर? ओके सर। एंड अभी का रन रेट क्या रहेगा सर हमारा मंथली रेवेन्यू का यूलोजिया से? क्या अभी रन रेट क्या रहेगा हमारा यूलोजिया से? मंथली कितना रेवेन्यू आता रहेगा अभी करंटली? अभी आप 1 से 1.5 करोड़ गिन सकते हैं। आप इतना समझिएगा, वेडिंग जून महीने में, जुलाई महीने, अगस्त सितंबर में वेडिंग नहीं होते मानसून सीजन में, आप जानते हैं। सारे वेडिंग 3rd and 4th क्वार्टर में होते हैं। राइट, तो 3rd and 4th क्वार्टर में मेजॉरिटी रेवेन्यू वाला सीजनल इफेक्ट रहेगा। गॉट इट सर, गॉट इट सर। हमारा जो हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू है 70 करोड़ का फुल ईयर का, उसमें से ब्रेकअप मिल सकता है सर कि इवेंट्स कितना होता है, F&B कितना होता है, रूम रेंट का कितना होता है उसका 70 करोड़ का? मे बी डीजल बेन। हाँ जी, बेसिकली जो 70 करोड़ का होता है उसमें से अराउंड 15 to 20% जो रहता है दैट इज F&B इनकम रहता है, जो हम लोग डिफरेंट प्लान पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं। बेसिकली कि कई प्रॉपर्टीज है, जैसे नर्मदा जैसी प्रॉपर्टीज है तो वहाँ पे AP प्लान हमारा रहता है, सो इट्स ऑल इंक्लूसिव मील प्लान। देन दी दमन दी प्रॉपर्टीज है तो वहाँ पे CP प्लान रहता है, तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के साथ में जाता है, राइट? सो दैट F&B का एग्जैक्टली वहाँ पे जैसे WRR है दैट अगेन इज अ AP प्लान। अयोध्या जो है वहाँ पे भी हमारा ऑल इंक्लूसिव प्लान रहता है। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट मेजोरिटी जो होता है फिर वो रूम एकोमोडेशन में चला जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग वहाँ पे उसका एलोकेशन करते हैं। पर मोटा मोटी देखे तो अराउंड 15% से 20% जो होता है वो हमारा F&B रेवेन्यू में जाता है। ओके, सो बैलेंस 85 इज रूम रेंट। और इवेंट्स का रेवेन्यू इवेंट्स में ही जाता है या कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या हॉस्पिटैलिटी में आता है?
कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसमें दो तरह से होता है कि जो रूम एकोमोडेशन और वो जो होता है दैट गोज इनटू द हॉस्पिटैलिटी, एंड जो इवेंट का पोर्शन होता है जिसमें हम लोग पूरा उनका इवेंट मैनेज करते हैं, तो दैट गोज इनटू द इवेंट डिवीजन। ओके, और कॉन्फ्रेंस का रेंट भी हॉस्पिटैलिटी में जाता है, राइट? यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। माय लास्ट क्वेश्चन इज ऑन दी एबिटा मार्जिन्स, कि हमारा जो एबिटा मार्जिन्स दोनों सेगमेंट का 22% और 39% रहा है, तो इज दैट कंटिन्यूएबल इन द फ्यूचर? कैसे होगा? सर, इट्स इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन ऑक्यूपेंसी। जितनी रिसोर्स की ऑक्यूपेंसी हायर जाती है इतना एबिटा मार्जिन हायर जाता है, आप इतना समझिएगा। और मैं सब इन्वेस्टर को इतना कहना चाहूँगा कि आपको वो भी कंपोजिशन देखना है, कितने रिसोर्स इनेग्रेट हुए हैं। आप जो इनेग्रेशन का जो स्पीड है आप समझ सकते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास एक रिसोर्ट था, एक इनेग्रेट हुआ दमन का लाइट हाउस। उसके बाद आज ए मार्च को 12 रिसोर्ट हम चालू किए हैं। ए मार्च में 12 ऑपरेशनल है। ये दिसंबर तक नए 10 से 12 रिसोर्ट चालू हो गए। आप समझ सकते हैं कि जैसे नया रिसोर्ट चालू होता है तो धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी, माउथ पब्लिसिटी, हमारे पास काफ़ी टीम है, काफ़ी रिसोर्सेज है, उसकी वजह से हम सीधा प्रॉफिट में जाते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इज लॉन्ग रन बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि कितने रिसोर्ट पुराने हैं और कितने रिसोर्ट नए इनॉग्रेट हैं, उसके ऊपर EBITDA का मार्जिन का एवरेज परसेंटेज रहता है। ओके ओके सर, गॉट इट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। हमने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया फ्रॉम SLM टू WDV टू SLM। एनी रीजन फॉर दिस चेंज? एंड क्या व्हाट वाज द बिगर assumption behind the change and thought process? सर, मैं आपको बहुत थोड़ा अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा। सर, हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को यस सर, जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर प्रवेग हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग स्टाइल, यू नो दैट थिंग्स। वी आर नॉट अ ब्रिक्स। जैसे बॉम्बे का एक होटल्स बना है, RCC, चंतर, प्लास्टर, सीमेंटिंग, वो वाली बिल्डिंग नहीं है। इट्स अ यूनिक स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर। सो 2014 के अंदर जब हमारी प्राइवेट लिमिटेड के पास ओनली 1 रिसोर्ट था, सब पॉलिसी थी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर क्लासीफाई करके 100% रिटर्न ऑफ करते थे वही साल में। वी आर नॉट एडॉप्टिंग हॉस्पिटैलिटी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रक्चर। वी आर यूजिंग a temporary structure definition to we have 2 options. Either we can go to the traditional style or either we case specific depreciation policy. In that year 2014 में हमारे पास WRR था, 15-16 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 18 में नर्मदा था। तो जो साल में बना वो साल में उसमें का 100% खर्चा यानी कि डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया। जो हमें को लगा कि 2000 अब हम जो जर्नी लेके जा रहे हैं 50-60 रिसोर्ट्स बनाने का सपना हमने जो बनाया है माइलस्टोन, वो लेके आगे हम जाते हैं तो ये डेप्रिसिएशन इज नॉट फेयर, गिविंग फेयर व्यू टू माय इन्वेस्टर। अगर मैं इस साल हमने 100 करोड़ का खर्चा किया और वही खर्चा मैं राइट ऑफ करूंगा तो लॉस बोलेगा प्रवेग के बुक्स में। तो इट्स नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हमारे जो बोर्ड था, हमारी जो टीम थी, हमारे जो ऑडिटर्स थे, सब टीम को ये लग रहा था कि भाई कुछ जस्ट एंड फेयर सिस्टम होनी चाहिए। दैट्स वाई वी हैव एडॉप्टेड पॉलिसी कि ये WDV जो स्टाइल थी उसको चेंज करके SLM करे। मैं आपको दूसरा भी बताना चाहूँगा, ये जैसे सिटी और मेट्रो की जो होटल्स है, अगर आप बंद करें या डिस्ट्रॉय करें या नॉकडाउन करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो प्रवेग के जो स्ट्रक्चर्स है इसमें काफ़ी यूज स्किल का है। मैं आपको उसका भी कंपोजिशन बताना चाहूँगा तो आप समझ सकते हैं। मोटा मोटी 45% जो खर्चा होता है, 35 to 45% वो स्ट्रक्चर का खर्च है, स्ट्रक्चर बनाने का, जिसके अंदर स्टील मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, मैक्सिमम वुड यूटिलाइज होता है।
दूसरा है उसके अंदर 15 से 20% फर्नीचर एंड फिक्चर है, जो नॉन पेरिसेबल आइटम है फर्नीचर फिक्चर। तो 55-65 15-20% जो खर्चा है वो पेरिफेरी और सराउंडिंग डेवलपमेंट्स का होता है, और 10% खर्चा हमारा ओवरहेड खर्चा, टीम, मैन पावर सबके हिसाब से होते हैं। तो इस पूरा जो खर्चा है 100%, वो अगर हम एक साल में राइट ऑफ करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या प्लान बनाया, तो हमने ऐसा प्लान बनाया कि 100 रुपीज जो खर्चा किया है पर्टिकुलर होटल रिसोर्ट्स में, उसका 5% एक पॉलिसी है कि रेसिडुअल वैल्यू हम 5% गिना है, जो काफी कंजर्वेटिव आज भी है, उसको रखते बाकी का जो 95% है वो उसको हम राइट ऑफ करते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो वो सारी पॉलिसी हमने ये चेंज की है, जिससे इन्वेस्टरों को ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स मिले समझने में। ओके सर। सर हमारी ऑक्यूपेंसी क्या है, एवरेज ऑक्यूपेंसी अक्रॉस रिसोर्ट्स फॉर FY24? डीजल में हाँ जी, एवरेज ऑक्यूपेंसी जो हमारी है, एवरेज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इफ वी टॉक अबाउट, देन इट इज अराउंड 45 to 50% के बीच में है। Okay, thank you so much sir and ma'am. Congrats on the great set of numbers. I'll get back in the queue if I have more questions. Thank you. थैंक यू करण, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almonds Financial. Please go ahead. Sir, thank you for taking my question. I just wanted to know about thought process behind this acquisition of this ABIC Advertisements and its subsidiary. Like they have got around 470 kind of advertisement holding sites. So means in Mumbai recently these accident had happened. So any means chances of those sites getting reduced and all these things. So broad to your management's thought process and likely revenues potential from these sites. मैं आपको पहले थॉट प्रोसेस बताना चाहूंगा। Yes. ABIC and others जो कंपनी है, it's belonging to other group who has experience of around 30 years of this outdoor publicity and media. आप जानते हैं कि प्रवेग का जो कोर बिजनेस है वो 3 कोर बिजनेस है। एक है एडवर्टाइजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एंड एग्जीबिशन एंड हॉस्पिटैलिटी। Right. हम जो बिजनेस लेते हैं गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, इट्स इंक्लूड आउटडोर कैंपेन, इट्स इंक्लूड मीडिया, इट्स इंक्लूड इवेंट्स, इट्स इंक्लूड हॉस्पिटैलिटी समटाइम्स। उसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट हॉस्पिटैलिटी को थोड़ा बाजू में रखिए। तो ये 2 जो मेजर बिजनेस हमारे वर्षों से चल रहे हैं, उसको हम अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, तो अभी आप समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ कोर बिजनेस विच वी वांट टू कैप्चर टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द ग्रुप। तो आउटडोर मीडिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जर्नी, कि उससे हम ज्यादा हमारे क्लाइंट्स के लिए, खास करके मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को हम सीधा सर्विस दे पाए। प्राइवेट को तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अगर आउटडोर का कैंपेन के खुद के रिसोर्सेज है, तो जब भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी आउटडोर मीडिया में जो ऑक्यूपेंसी होती है होर्डिंग की, वो 80% एवरेज होती है। उसका मतलब है 12 महीना होर्डिंग नहीं चलता है, 12 महीने में से 9 से 10 महीना होर्डिंग का बिजनेस मिलता है, 2-3 महीना नहीं मिलता है। तो वो 3 महीना प्राइवेट भी उसको यूटिलाइज कर सकता है फ्री में बाकी की, यानी कि हमारे लिए फ्री में वो जो अनयूटिलाइज होल्डिंग है, अनबुक्ड होल्डिंग है, उसको हम प्राइवेट का ब्रांडिंग कर सकते हैं। वो बोनस, ये बोनस की बात है, इसमें कोई खर्चा कंपनी का नहीं है। ये कंपनी का कंट्रोल आने से मेरे को एक फायदा होगा, वो बाय प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा है फायदा, हम गवर्नमेंट का जो बिजनेस लेते हैं एग्जीबिशन, इवेंट, एडवर्टाइजिंग वाला, तो उसका काफी काम ये होर्डिंग के थ्रू होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम उसको किसी थर्ड पार्टी को देना पड़ता है, उसकी जगह कंपनी को खुद का ग्रुप की कंपनी होगी तो उसका एक फायदा मिलेगा। दूसरा, हमारे पास एसटी स्टेशन है, बस होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, और जो स्टेशन होते हैं बस स्टेशन, वहाँ के राइड्स भी है 3000 अप्रोक्सीमेटली। डीजल मैन ब्रीफ करेंगे उसके बारे में, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। तो वो भी उसका बिजनेस है। और तीसरा हम बिजनेस नया ऐड करने जा रहे हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग मीडिया। तो अभी के अंदर पूरा
सिस्टम है, पूरी टीम है, पूरा सेटअप है वो कंपनी का, तो वो सेटअप ही मैनेज करेगा। हमारा प्राइवेट की एग्जिस्टिंग टीम और प्राइवेट की जो मैनेजमेंट है वहाँ सिर्फ ओनली रिप्रेजेंटेशन होगा। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के होंगे, ऑपरेशनल टीम वही होगी, सिर्फ हमारा ऑडिटर्स एंड गाइडलाइन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बिजनेस एक्सपांशन इसमें जो भी कर सकते हैं वो 2 स्कोप हमारे पास है। हमारे पास अभी नया बिजनेस आ रहा है राजस्थान हरियाणा से अभिक के अंदर, वो बिजनेस वहाँ ऐड होगा। उसके अलावा हम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक नया डिवीजन अभिक के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जो यंग टीम है उसको आगे मूव फॉरवर्ड करेगी। तो कुल मिला के एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग मीडिया जो प्राइवेट की कोर एक्टिविटी है उसको थ्रू सब्सिडरी एंड थ्रू फर्दर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग के थ्रू हम ये बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। प्राइवेट विल मॉनिटर फाइनेंस, प्राइवेट विल मॉनिटर सिस्टम, प्राइवेट विल मॉनिटर ऑडिटिंग सिस्टम, जो भी कंप्लायंसेस है वो प्राइवेट का जो सिस्टम है वो अप्लाई होगा। बाकी का उसको फ्री हैंड देके ये जो माइलस्टोन बनाए हैं वो माइलस्टोन को हम आगे ले जाएंगे और फ्यूचर में हो सकता है वो कंपनी भी लिस्टिंग की ओर बढ़े। Okay, sir. And just wanted whether all the sites are on as per the guidelines of the corporation, because recent this Mumbai accident. It's always permitted sites only. Okay, sir. वो इलीगल नहीं कर सकते हैं, जब बड़ी कंपनी होती है वो इलीगल नहीं कर सकते हैं। तो इस जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ गवर्नमेंट का अप्रूवल और गवर्नमेंट टेंडर थ्रू स्पेस मिलता है। जहाँ प्राइवेट स्पेस है वहाँ उसका जो भी रूरल एरिया है तो कुछ अभी कोई गाइडलाइन नहीं है तो उसका नहीं होता है। बाकी जहाँ भी कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी कंप्लाई करती है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Nalin Shah from NVS Brokerage. Please go ahead. ये सर, चेयरमैन सर ने जैसे बताया है कि जो नया होटल्स हम बनाते हैं तो स्टेबलाइज करने के लिए 6 महीने से 12 महीने का टाइम जाता है, समटाइम्स इट इवन गोज टू 2 years, एंड नंबर ऑफ द स्पीड विथ विच वी हैव इंक्रीज द होटल्स। तो ये 2 चीज देखते हुए कैन वी से कि FY26 is the year where we will have the full effect of these expansions coming on rather than FY25. That is one. And because as Chairman Sir has said ki last year the manpower increased and also this gestation period of the different hotels, so somewhat for the analyst to make sense, FY25 and FY26, some guidance or some sense of profitability can you give us, sir? Yeah. मैं आपको फिर से थोड़ा आपका एक स्टेटमेंट क्लैरिफाई करूं। ट्रेडिशनल होटल को 2 से 4 साल लगते हैं स्टेबल होके प्रॉफिट मेकिंग होने में, मैंने ऐसा बोला। हालांकि प्राइवेट का लाइट कैपेक्स मॉडल की वजह से हम शुरुआत जैसे ही लॉन्च करते हैं इससे आज तक जो भी लॉन्च की इसमें से एक आध ब्रेक इवन जो सीजन में ऑफ सीजन में अगर एनिगेट हुआ है तो 1-2 क्वार्टर हो सकता है EBITDA मार्जिन नहीं कंट्रीब्यूट कर सके, बट इन सीजन वो कंट्रीब्यूशन चालू करेगी तो 6 से 7 महीना 6 से 9 महीना मिलेगा तो हम ज्यादा मार्जिन उसको EBITDA मार्जिन पे उसको ले आ सकते हैं। यानी कि अगर हमने मार्च 24 में लॉन्च किए हैं तो अगर आप मेरे को 9 महीना देंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट आपको थर्ड क्वार्टर में मिलेगा वो प्रॉपर्टी से, थर्ड क्वार्टर का से अच्छा मिलेगा फोर्थ क्वार्टर, और ईयर टू ईयर अगर आप जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी अच्छा परफॉर्म करती आपको दिखेगी। मैं ऐसा रिक्वेस्ट किया, मैं ऐसा इन्वेस्टर को समझा रहा हूँ कि आपको 3 से 6 महीना टाइम देना इसीलिए पड़ेगा, उससे हमारा जो EBITDA स्टैंडर्ड है, मेरा खुद का EBITDA मार्जिन स्टैंडर्ड है वो 40% का है, तो वो आने में आपको 9 से 12 महीना 1.5 साल अगर आप देंगे तो धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि प्रॉपर्टी 40% EBITDA मार्जिन पे पहुंच गई होगी। हालांकि ये केस में पर्टिकुलर मार्च 24 के रिजल्ट पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें अराउंड 6 प्रॉपर्टी ऐसी है जो मार्च क्वार्टर में ही या थर्ड क्वार्टर में ही लॉन्च हुई है, तो वो 3 महीने का ऑपरेशनल पीरियड का है, फिर भी हम 28% EBITDA का मार्जिन लेते हैं। ये कहने का मतलब। हेलो,
Hello, Nalin Shah. Are you done with your question? Yeah. So, sir, I just wanted to what Chairman sir has explained. So, can we say कि FY26 is the year which we should look out for rather than FY25? You will find some interesting development after inauguration of many line-up resorts, जो हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक करना चाहते हैं. वो रिसोर्ट्स के रिजल्ट मतलब इनॉग्रेशन के बाद आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने मिलेंगे, जो अनएक्सपेक्टेड होंगे आप सब के लिए. Okay, thank you for the answer, sir. Thank you. The next question is from the line of Nikhil from Family Office. Please go ahead. थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कुछ लक्षद्वीप प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बता सकते हैं कि कैसे हमको उधर ऑर्डर मिले और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा प्रोजेक्ट का, उसके बारे में सर कुछ आप बता सकते हैं? सर इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड. माय स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज ऑन पोर्ट. मैनी मटेरियल जो स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए है वो सारा लक्षद्वीप में पहुंच गया है. आप जानते हैं लक्षद्वीप का जो दरिया है जून जुलाई महीने के अंदर थोड़ा तूफानी होता है दरिया. तो इसमें मैं पूरे 1500 से 1000 लेबर की फोर्स होती है, क्योंकि वहाँ हम 3 और 4 रिसोर्ट खड़ा करने जा रहे हैं. तो जून जुलाई में हमने उसको ऑपरेशन को स्टॉप रखा है फॉर द सेफ्टी पर्पज. उसके बाद फिर से उसका काम चालू होगा. वी आर एक्सपेक्टिंग कि नवंबर वी विल स्टार्ट द बिजनेस. ओके, सो नवंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस 9 मंथ दिसंबर के पहले हमारे मैक्सिमम जो भी लक्षद्वीप के टारगेट है वो अचीव करना चाहते हैं हमारी टीम. ओके सर. और सर ये क्वार्टर में हमारा मार्जिन का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी मार्जिन हमारे बहुत कम हुआ है. तो उसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये बारे में. और मार्जिन 28% EBITDA मार्जिन पे इस बार 9.1 इज EBITDA मार्जिन आउट ऑफ 32 करोड़ बिजनेस. और अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर जाएंगे, मैं सब इन्वेस्टर को चाहूँगा एक बात कहना कि आप रादर देन दिसंबर मार्च को कंपेयर करें. बेस्ट अगर आप प्रवेग को समझना है तो आपको मार्च 23 को मार्च 24 से कंपेयर करना है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी कंपनी में ऑलवेज सीजन बहुत मैटर करती है. लास्ट जून 23, ये जून 24, लास्ट सितंबर, ये सितंबर, अगर क्योंकि वही सीजन सितंबर की 9 महीने पहले थी, 12 महीने पहले जो ऋतु चक्र हम बोलते हैं, तो वो इफेक्ट होती है. तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको अच्छा रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने मिलेगा. ये सर. और सर इस क्वार्टर हमारा टैक्स रेट भी कुछ ज़्यादा आया है, 72% का. 74% टैक्स रेट का हमारा जो टैक्स रेट है ना, तो सर उसके बारे में मैं वही बोल रहा हूँ. 9.1 में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अराउंड 6 करोड़ समथिंग. और आप जानते हैं मार्च महीने के अंदर सर ग्रेजुएटी की प्रोविजन आई. पहले हमारा पूरा स्टाफ 150 लोगों का स्टाफ पूरा ऑन रोल था और बाकी का सारा स्टाफ आउटसोर्स था. इस बार पूरा मैन पावर 1100 मैन पावर इज ऑन प्रवेग रोल. तो मेरे को 1100 लोगों की ग्रेजुएटी की प्रोविजन करनी है, 1100 लोगों की बोनस की प्रोविजन करनी है. आप स्टेट्यूटरी कंप्लायंस देखेंगे तो वो करने हैं. प्रोविजंस मार्च महीने में ऑलवेज कम विद द प्रोविजंस, रेसिडुअल जो भी है वो. तो काफ़ी कुछ मार्च में इफेक्ट किया है काफ़ी चीज़ें. लेकिन सबसे बड़ी बात इन्वेस्टर को ये समझनी है, अगर आप हमारा ट्रिप एडवाइजरी रेटिंग देखेंगे, ऑपरेशनल स्टाइल देखेंगे, जो हम ग्रो करने जा रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो आपको देखना चाहिए. वो बहुत मैटर करता है हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में. अभी आप शुरुआत के वर्ष में सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या गुडविल कमाया. थैंक यू सर, थैंक यू गाइड करने के लिए. सर मेरा एक और क्वेश्चन, जैसे कि पहले आप जैसे बता रहे थे FY23 में हमारे 2 रिजॉर्ट थे, अभी हमारे पास 12 रिजॉर्ट थे, 13 रिजॉर्ट थे. तो सर यानी अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना सर डिफरेंस रहेगा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 FY25 के FY24 से, तो डिफरेंस रहेगा ना सर काफ़ी हद तक? प्लीज लाउड. यस सर, कैन यू हियर मी? या नाउ ओके. यस सर. सो एज यू सेड, जैसे आपने बताया था FY24 में हमारे दो रिजॉर्ट्स थे और
हमारे 13 रिजॉर्ट्स हैं। तो सर अभी यानी हमारा डिफरेंस रहेगा ना Q1 और Q2, हमको सिग्निफिकेंट वही तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप Q1 लास्ट ईयर का देखेंगे और Q1 इसका देखेंगे, मार्च 23 का और मार्च 24 का कंपेयर करेंगे, आपको जो इंक्रीमेंटल मिलेगा वो बिजनेस है रिसोर्ट के नए ऑपरेट होने से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके सर। और सर अभी भी आपने कुछ समय पहले आपने गाइडेंस दी थी 300 करोड़ टॉप लाइन की, तो सर अभी भी हम उस पे वो ट्रेजेक्टरी भी ना सर मार्च 25 वी आर वर्किंग बियॉन्ड दैट। यस सर। ओके सर। एंड सर अबाउट और एक्सपेंशन, जैसे हम लोग जैसे इस साल आपने बताया कि कुछ ये सर। हेलो। यस सर। तो जैसे इस साल आपने बताया मेडिसिन करने वाले हैं नए रिजॉर्ट्स में, तो जैसे कितने रिजॉर्ट्स आप इस साल ऐड करने वाले हैं? मेरा आपका क्लैरिटी वॉइस नहीं आ रहा है, पता नहीं प्लीज। Sir, hello, can you hear me now? Mr. Nikhil, can you speak a bit louder? We're not able to hear you. Yes, can you hear me now? Yes, sir. Please proceed. Yeah. Yes, sir. तो सर इस साल हम कितने रिजॉर्ट्स का एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी नए 9 रिसोर्ट्स अंडर डेवलप प्रोग्रेस में है, 10 रिसोर्ट्स। ओके सर। यस सर। तो आपको दिसंबर के पहले नए 10 रिसोर्ट्स इनॉग्रेट करने के लिए पीछे पड़ी हुई है टीम। ओके सर। That's it from my side. Thank you, sir. Thank you. A reminder to the participants, anyone wishing to ask a question, may please press star and 1. The next question is from the line of Yashwanti from Kojif Invest. Please go ahead. Thank you, sir, for the opportunity. Sorry to interrupt. Ma'am, can you speak a bit louder? We're not able to hear you. Am I audible now? Yes, much better. Thank you. Please proceed. Yeah. So I want to understand, as you mentioned, we have comparatively lesser number of resort last year and the way we have increased our inventory in the current year. I just wanted to understand how is the trend going on average room rate? What was in FY23, how it has grown, or it is on a par as compared to FY23? And what is your outlook going forward when you are expanding? So you wanted to focus more on a volume or on a average room rate also? So just wanted to understand your strategy over there. Average room rate and another? So average room rate only, sir. What was the average room? What is the average room rate for FY24 and how it has been as compared to FY23? FY23 का ARR और 24 का ARR? Basically, if we talk about the historical data, in 23 we have only 2 resorts, running resorts, that is the Tent City Narmada and the WRR. So for the Tent City Narmada, the average revenue was around 8,400, and for the WRR it was around 10,000, and Tent City Varanasi it was around 12,000. All other resorts are newly opened in the financial 24 itself. So the historical previous year data is not available for the comparison. But if we talk about the average ARR for all these resorts, it ranges between 7,500 to 14,000. It depends upon CP and AP plan also. It depends upon CP and AP plan, and it depends upon the location to location, property to property. Oh, I'm not talking about the individual resort. My understanding was mainly towards when we had a 3 resort, we had an average room rate of around 10,000, considering the 8,000, 10,000 and 12,000 for the 3 resorts. So just wanted to understand, when we have this around 8 to 9 resort operating for FY24, what was our average room rate for all these 9 resorts? So just wanted to understand whether the average room rate has gone along with the volume. Yeah, understood. Bijal Ben, I give this detail. जैसे कि आपने नर्मदा का भी बताया बिजल बेन ने 8,400, 10,000 फॉर WRR एंड 12,000 फॉर वाराणसी. ऑलवेज रूम रेंट के अंदर 2-5% ईयरली इजाफा रहता है ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर, ड्यू टू इन्फ्लेशन फैक्टर ऑल्सो. नंबर 1. नंबर 2, अभी जो नए रिसोर्ट ऐड हुए हैं उसका अगर टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स अगर आप सोचेंगे
तो कम से कम आपको 8,000 के 10,000 के बीच में आपको एवरेज मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो रिसोर्ट अभी इनॉग्रेट हो रहे हैं वो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन ARR। हमारी ग्रैंड इनोगिया है, उसका जो रेवेन्यू है वो 25% रूम से आ रहा है, 70% आ रहा है अदर एक्टिविटी, अदर सोशल बैंक्वेटिंग, वेडिंग बिजनेस के हिसाब से। हमारी जो नई प्रॉपर्टी अडालज इनॉग्रेट हो रही है वहाँ सिर्फ 10 रूम है, लेकिन वहाँ जो शादी के लिए 30,000 स्क्वायर मीटर की लैंड में हमने वाव बनाया है रियल स्टोन से। तो वो जो सारा बिजनेस है वहाँ वेडिंग का बिजनेस आने वाला है। कच्ची गांव के अंदर हमने एक बड़ा 90,000 स्क्वायर मीटर का तालाब लिया है, 9 लाख फीट होता है, बहुत बड़ा तालाब है। उसके अंदर हम 50 रूम बना रहे हैं और उसके जो 3 आइलैंड है इसमें 3 डिफरेंट वेन्यू क्रिएट कर रहे हैं वेडिंग के हिसाब से। तो वहाँ जो बिजनेस है वो वेडिंग का है। लक्षद्वीप के अंदर 3 एक्टिविटी होने जा रही है, मैं आपको बताने जाऊँ। एक है वाटर एक्टिविटी, एक है वाटर एक्टिविटी जहाँ स्पीड बोट, जेट स्की, कायाक, क्रूज, हनीमून ट्रिप काइंड, स्नॉर्कलिंग से लेके काफी कुछ एक्टिविटी है जो प्रवेग का राइट्स है। तो प्रवेग वो सारे गेस्ट को वहाँ वो एलाइड सर्विस भी देने वाला है, नॉट ओनली रूम। उसके अलावा हमारे पास जो लोकेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन है। अगर आप थिनाकार और बंगारम गूगल करेंगे तो पता चलेगा। तो वहाँ शादी के लिए हमने 3 लोकेशन, हमारे 5 रिसोर्ट में से 3 रिसोर्ट 3 शादी एक साथ कर सके ऐसे बनाने जा रहे हैं। तो वो काफी रेवेन्यू वहाँ से आने वाला है। तो ये सारे डिजाइन सिर्फ ARR पे बेस्ड नहीं है, हमने रादर देन ARR वी आर फोकसिंग मोर ऑन रेवपार रेवेन्यू और टोटल जो जनरेट होती है वहाँ से, उसके ऊपर हमारा फोकस है। ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे अभी तक FY24 में हमारा जो रेवेन्यू आ रहा था, वन इज फ्रॉम lending out the rooms and also from the event and exhibition. So going forward, our revenue stream would be 3. One is the room lending, one is from the exhibition and event, and third is like giving more of your space for the you can say wedding and all other activities. Wedding, water activity, madam, water activities mass scale we are going to develop there. Right. और 4 जो रिसोर्ट्स है, एक का अभी पोजीशन नहीं आया है, 4 का है, 3 का आ गया है, चौथा और 5वें का अवेटेड है। वो कुल मिला के मोटा मोटू 386 रूम लक्षद्वीप में बनने जा रहे हैं और तीनों आइलैंड पे हमारी वाटर एक्टिविटी बहुत बड़ी होने वाली है। तो एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी प्रवेग को मिलेगी। Right. So going forward, our contribution from total hospitality, what it means is from the from your room would be around 20-25%, 30%, and the rest is coming from the other. No. It's a property specific. अहमदाबाद की जो ग्रैंड इलोगिया है वहाँ 25-30% है। अगर आप दीव दमन में जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे तो 100% ARR बेस है। Okay. So it depend upon property. I already given details Kachchigam, Dalaj, then after Lakshdeep की property 3 type dimensional है, ARR से है, water activities है और तीसरा wedding activities है, social activities है। तो ये पूरा जो ARR पे जो डिपेंड है वो आप गिन सकते हैं 60%, 50% कंट्रीब्यूशन ARR से 50 से 70% के बीच में कहाँ आके रुकेगा, जो ARR रूम से होगा और फूड से होगा और बाकी का 30-40% कंट्रीब्यूशन दूसरी एक्टिविटी से हम फोकस करने जा रहे हैं। तो इसीलिए तो एक्सपीरियंशियल हॉस्पिटैलिटी का टूल लेके प्रवेग आगे एक्सपांड कर रही है। और जो तीसरी एक एक्टिविटी है जो एडवर्टाइजमेंट, ये थ्रू अबिक वी हैव मेजॉरिटी कंट्रोल इंटरेस्ट, तो वो भी बिजनेस का जो वॉल्यूम आएगा वो प्रवेग का सब्सिडरी का वॉल्यूम आप समझ सकते हो उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के हमारा 300 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वी कुड अचीव, वी आर वर्किंग ऑन दैट मिनिमम। ओके, एंड सर अगर आप EBITDA मार्जिन पे इफ इट इज नॉट टू अर्ली टू टॉक अबाउट, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मार्जिन फ्रॉम दिस वाटर बेस एंड फ्रॉम दिस वेडिंग अलॉटमेंट ऑफ योर रूम योर स्पेस, व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन यू कैन एक्सपेक्ट? बियॉन्ड 40%। 40%. Beyond 40%. Beyond 40%.
तो और एक बात मुझे समझनी थी, लाइक whenever you develop any resort on any of the government contract, तो वो लैंड आपको गवर्नमेंट से आती है कि आपको ही खरीद के आपको इसको ऑपरेट गवर्नमेंट देती बिल्ड एंड है, गवर्नमेंट देती है। हाँ, हमें को बिल्ड करना है, हमें को ऑपरेट करना है, हमें को चलाना है, और फिर उनको लॉयल्टी देनी है। लीज और रॉयल्टी जो भी आप उसको ओके, हाँ, लीज है। Okay, sir. Thank you so much for making me understand the business in more detail. Wish you all the best. थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question. I now hand the conference over to Ms. Preeti Bharadwaj for her closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Praveg Limited. If you have any queries, you can write us at research@kirinadvisor.com. Once again, thank you everyone for joining the conference call. Thank you, members of the management team. Thank you all investor and all analyst team. Thank you, Kirin team. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Kirin Advisors Private Limited, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.